Good morning, everyone, and I hope all of you all are doing well. And welcome once again to a session by Roots to Success in collaboration with we have Dr. Sana here, who's a very highly qualified and experienced gynecologist. She's bringing all her expertise and knowledge about women health to share with us. So I would say today's session is mostly like Sana will be taking over after I do a brief session about, uh, you know, little bit of mental wellness because which we do always like before starting a session, we do a bit of those rounds of breathing exercises and a bit of stretches we'll do. And then I'll hand over to Dr. Sana. She'll take over and after her session, then there will be a small like 10 to 15 minutes will be given for an open discussion. Anybody has any queries related to, because as it is very evident from the flyer itself that this session is basically based on the menopausal state or the premenopausal phase which a woman goes through. So this, I would say this transition from of a woman when she's in menstruation, when she's menstruating and she goes into that menopause, it's very challenging wherein the, bodily or the mental challenges she faces, people around her are not able to understand. So it's a struggle within your own body and your mind. So uh, if you have any queries related with that, please keep it ready so that Dr. Sana can help us and guide us with it. Everybody is in. Can we open the cameras? Like it would really be nice. Okay, so let us begin with a bit of breathing exercises. The breathing exercise, I think the ones like Roshni and all the Fatima, who are regular joining with us, they know that we do the deep breathing techniques. But today we focus on the breathing technique, which is like, sitting ways, we will do the Kegels, which is very important for women for their pelvic floor muscles. So, just so that you do the correct technique, put your hands on your abdomen so you know that you are breathing in the right technique. When we will breathe in, our stomach or your belly should blow out like a balloon when you breathe in. Okay. And when you breathe out, that is the time you should tuck it in and it should contract, not the other way around. Usually we do when we breathe in, we take the stomach in. No, it should not happen that. The stomach should swell out like a balloon, breathing in and breathing out, and we'll hold for 4 counts. Okay, let's do. Let's start. Breathe. You can close your eyes because then you'll have that mental pace in your. Let's close our eyes and breathe in. I'll count till 6. Keep breathing in and let your stomach swell out as much as it can. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now let's hold on for a count of 4. 1, 2, 3, and 4. And exhale. Exhale as much as you can and contract your stomach muscles. Feel it that it's going inside. Okay, done. Now, next round, let's go again for a count of 6. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And hold. 1, 2, 3, and 4. And you exhale. I'll count. Exhale and contract your muscles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's it. Very good. Let's do the last round, a third round. Inhale for the count of 6. Let your stomach pop out as much as you can and inhale deeply. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Hold. 1, 2, 3, and 4. And exhale. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. That's it. Just rub your hands and
So place it over your eyes so you feel a bit calmness on. Now that was it. We'll do just two stretches, basically based on this part of our body, which the neck and the shoulders. These are the parts. Now we are so much engrossed with the mobiles and all. No, the main stress comes from the neck towards your shoulders. So we'll just relax our shoulders. So as we move forward to the session, we are in a relaxed mode and concentrating with Dr. Sana's all knowledge what she's sharing us. So we'll place on your shoulders, place your palms, and just let's do clockwise. 1, 2, 3, 4, and 5. Now the other way around. 1, 2, 3, 4, and 5. Now just bring your hands in front and do this way. Take it behind for a count of 5. Don't do it very harshly. Go slow, but feel the stretch coming here when you're doing it. Okay. Can we do the hand rotations clockwise and anti-clockwise? Clockwise 5. 1, 2, 3, 4, and 5. And anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, and 5. That's it. This was just to relieve our tension. Mostly now we are so much hooked to the mobiles, and even when we are cooking in the kitchen, always our neck is bent down. So all the stress comes here, and just to relieve it, we did this. And before I hand over to Dr. Sana, now Roots to Success is a team of coaches. I am Alia Jamil. I am a qualified counseling psychologist, as well as I have done my diploma in counseling and coaching as well with NLP techniques. Along with me, I have my teammates, but unfortunately, because of this viral bug hitting everybody, they are unwell. So they are behind the scenes as for today. They are very much with us, but behind the scenes. That is Radhia. She is a food technology expert and she deals with nutrition as well. So, since this topic is on menopause, before being a mindset coach, I would just give 2, 3 pointers to you, and then Dr. Sana will take over. Now, when during this premenopause or menopause stage, because I have gone through that, I had an early menopause as I am a hypothyroid patient. So, because of my hypothyroidism, the menopause early onset had triggered, and in my early like 40 41 age, I went into that premenopause stage, and by the age of 42 I was totally into menopause. So I have gone through all these things, and I have seen that the big challenge is not only our body but even our mind. What it face we face those challenges. Nobody around us understands it. I don't know why. And at that time, what we feel, people around me don't love me. Even your husband will not understand sometimes. And children, like if it is a girl child, maybe you can tell her openly something. But if you have boys, which I had, so it was really uncomfortable for me to tell to them what's going on. Young boys, I cannot tell them. So at times I used to feel that they is all no, they don't love me and all, but it's not the case. Actually, the problem here it comes, they don't know actually what we are fighting through. So it's always better to talk to your husband, maybe not to your sons, to your husband, to your daughters, so that talking also relieves your tension, and maybe some way, some type, they can help you in any way, like. So here, like I would say, when we are going through this phase, the best things which we could do, 2, 3 pointers, which I would tell you is we could include proteins in our diet, because muscle loss is happening in our body, and try to do little bit of
weights, weight training, strength training. Basically, even I am not a very gym person, so I don't lift lots of weights and all. But at home, you can watch some little bit of videos and do with your water bottles and all, just to regain those muscles. And strength training also helps for your bone density. In this stage, lots of calcium is lost, and your bones become very brittle, weak, and then it leads to osteoporosis, which we need to avoid. So, little bit of care here, then focus on your sleeping habits. Try not to be on your mobiles after at least 10. Keep your mobiles and go to sleep. Try to have a very nice sleep. That will also help. And breathing exercises, that I have seen, deep breathing exercises or meditation, that helps to ward off all this mindset issues, what goes on, those struggles, that stress, that depression, that anxiety, all that is, I won't say in one go, but slowly these things help us to a good night's sleep. And a meditation technique, breathing techniques, they help with all these mindset problems which we face. So these were the few pointers which I was telling on my part. Now we have a very, she's a qualified gynecologist. She's a practicing gynecologist and very experienced person. I have interacted with her on various topics related to women health, and she's doing a really wonderful job in pertaining to women's health. If you see her Insta posts and all, every time there is a very knowledgeable post which is really beneficial for us. So we have Dr. Sana here, and she'll now take over from me. Over to you, Dr. Sana. Okay, thank you so much, Alia Baji, for all your introduction. I'm overwhelmed and very, I appreciate it. Or sabko, hello, good afternoon, salam alaikum. So today we are talking, as Alia Baji has already given a brief about, it is menopause. Abhi menopause, I think should I speak in Hindi? Everybody will understand. In between, like mixed, है ना? या सो सी मीनोपॉज एक ऐसा टॉपिक है, जैसे अभी अभी बाजी ने बोला है कि लोग बोलते नहीं है इसके बारे में. इट शुड बी टॉक्ड अबाउट जस्ट लाइक अदर कैंसर्स एंड अदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वी हैव. Menopause should be talked about so that when we are going through that phase, we shouldn't feel that we shouldn't feel embarrassed to talk about it. नेचुरल प्रोसेस है, सारी औरतों को जाना है इसमें, ठीक है ना. तो अभी मीनोपॉज होता क्या है? मीनोपॉज होता है जबकि पूरे 12 महीने तक, फॉर होल 1 ईयर यू डू नॉट हैव योर पीरियड्स, देन वी टर्म इट एज मीनोपॉज if you have no other cause for it. Okay, you have to get checked and see कि आपका cause क्या है. कुछ नहीं है और सिर्फ आपको पीरियड नहीं आ रहा है और आपकी एज उसके हिसाब से है, तो फिर आपका वो मीनोपॉज हो जाता है. सारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस बंद हो जाते हैं, पीरियड आना बंद हो जाता है, ठीक है. अब इसमें होता क्या है, क्योंकि हमको शुरू से हार्मोन्स होते हैं हमारी ओवरीज के अंदर, जो कि मैनेज कर रहे होते हैं, हमारा पूरा लाइफस्टाइल मैनेज करता है हार्मोन. तो जैसे ये हार्मोन्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, बंद होना शुरू हो जाते हैं निकलना ओवरीज से, तो हमें चेंजेस आते हैं. जैसे कि सबसे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज इज you will start having mood swings, brain fogging, like supposing you're talking something and you'll forget. You'll go in the kitchen, you'll forget why you're here. You'll go, supposing your bedroom is on the first floor, you come down and you'll think, why, क्यों आए हैं हम यहाँ पर, क्या लेने आए थे हम. इस तरह का ब्रेन फॉग होने लगता है, which is very disturbing for some women. Then mood swings, of course, irritability, small things can cause irritation. मतलब unnecessary things will cause irritation, जो कि बाद में आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि क्यों मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया इसके ऊपर. It was okay. Then because estrogen reduces, तो हमारी bone density बहुत कम होने लगती है, पैरों में दर्द, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, और टिंगलिंग होने लगती है, नमनेस होने लगती है हाथ पैरों में. My mic. I don't know. Shall I continue? Can everyone hear me? Excuse me, ma'am. Ask everyone to mute their mics.
Yeah. Yeah, everybody can hear you, Sana. Yeah. Requesting everyone if we can mute our mics, no, so we can pay attention to what Dr. Sana is saying, please. It's okay. When you want to ask question in between, you are all free. Please पूछिएगा, तभी मतलब मेरा कोई फायदा होगा यहाँ बोलने का. अपने जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, सब पूछिए. ठीक है ना? तो अभी आई वाज टेलिंग यू कि व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग मेनोपॉज. सो वी वेंट थ्रू अ फ्यू ऑफ देम. Then other changes will be you'll start getting more wrinkles, face, neck, side of the eyes. Your skin will become dry, and all this is happening because of one single hormone which goes down in menopause, that is estrogen. All right. उसके बाद क्या होता है कि हमको बहुत सारी चीजें, जैसे कि नींद नहीं आना, हॉट फ्लैशेस बहुत कॉमनली होते हैं. वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट इट. हॉट फ्लैशेस, हॉट फ्लैशेस होता क्या है? हॉट फ्लैशेस, hot flashes होता है when suddenly you are sleeping and you you will wake up with sweat all over. एकदम से मतलब बहुत तेज आपको गर्मी लगेगी, हालांकि एसी भी चल रहा होगा, पंखा भी चल रहा होगा, बट यू स्टार्ट फीलिंग वेरी हॉट. फिर कभी कभी क्या होता है, एकदम से ठंड लगने लगती है. कुछ नहीं, आपने बहुत गर्मी लगी, आपने एसी चलाया, उसके बाद आपको बहुत जोर से ठंड लगने लगेगी, तो फिर आप एसी बंद करो. तो ये साइकिल चलती रहती है बहुत सारे लोगों में. दे फील हॉट एंड कोल्ड, बट मोस्टली इट इज स्वेटिंग, जो बहुत तेज स्वेटिंग होती है, और उसकी वजह से बहुत दिमाग, मतलब दिमाग खराब हो जाता है. उस तरह का होता है. उसके बाद जैसे कि आलिया बाजी ने कहा कि शी वॉज हैविंग दैट फीलिंग दैट नोबडी लव्स मी. सो एंजाइटी एंड डिप्रेशन very very common in perimenopause and menopausal age. So we must be aware of all these symptoms के ये होंगे हमारे साथ में. और ये कोई बीमारी नहीं है. menopause is not a disease. We have to accept it that it is a natural process which every woman has to go through. Okay. मीनोपॉज की जो एज होती है वो होती है 44 से लेके 55 के बीच में. ओके. लेकिन जो इसकी एक अप्रोक्सीमेट एज डॉक्टर्स बोलते हैं वो होती है 51 ईयर्स. तो 44 से लेके 55 ईयर्स तक आपको कभी भी मीनोपॉज हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इट विल बी अराउंड 51 ईयर्स. और ये एज ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी मदर को कब मीनोपॉज हुआ था. ओके. बहुत बार जिस एज में आपकी मॉम को, अम्मी को मीनोपॉज होता है, वही एज में लड़कियों को मीनोपॉज होता है. फिर मीनोपॉज, जो प्रॉपर मीनोपॉज हो जाता है ना, उससे 8 to 10 ईयर्स पहले से ये सारे सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं. सो बहुत सारी खातून जो होती हैं वो 35 ईयर्स से ही ये सिम्टम्स लेके आने लगती हैं कि भाई ये हो रहा है, कोई और रीजन नहीं होता है. सो व्हाई इज इट हैपनिंग? इट इज बिकॉज दे आर इन द पेरीमेनोपॉजल फेज. ओके. तो अब ये हो गया कि कब होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एज क्या होता है. नाउ नेक्स्ट वेयर वी गो, कि हमको डॉक्टर के पास जाना है. आपको अपनी तकलीफें बतानी है कि भाई डॉक्टर ये हो रहा है, क्या मसला है ये. If you are diagnosed as a female in perimenopause or menopausal age group, then the doctor will advise you certain tests. ये होते हैं hormonal tests होते हैं. तो आपको ये करने से ये पता लगता है कि क्या आप पेरीमेनोपॉज की फेज में हैं या फिर आपको मेनोपॉज हो चुका है. वो तो होगा क्योंकि जब आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स लोअर होंगे, तो हार्मोनल टेस्ट कराने जरूरी हैं. ऑल्सो अपना थायराइड चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे थायराइड हो गया या शुगर वाली बीमारी होगी, डायबिटीज 2, ये सब अफेक्ट होती हैं, ज्यादा होने लगती हैं मेनोपॉज में. तो ये कराने बहुत जरूरी हैं. आपके हार्मोन्स हो गए, थायराइड हो गया, ब्लड शुगर हो गया, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल. ये टेस्ट जरूरी होते हैं मीनोपॉज में कराना, क्योंकि इससे भी हमको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जितनी भी होती हैं ना औरतों में, वो मीनोपॉज के टाइम ज्यादा हो जाती हैं. तो हमको ये सारी चेक अपने रखने चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल ठीक है हमारा, लिपिड प्रोफाइल ठीक है हमारा. उसके बाद बोन डेंसिटी के लिए आपको विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए. और अगर ज्यादा ही तकलीफें हैं कि बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा है, उठने बैठने में वो टक टक सी आवाजें आती हैं, तो फिर हमको अपना एक बोन डेंसिटी स्कैन कराना चाहिए, विच इज कॉल्ड डेक्सा स्कैन. ओके. फिर और क्या है,
ये सारे जो मतलब जो रूटीन टेस्ट होते हैं ना वो तो हम कराते ही कराते हैं। उसके बाद हमको पैप्समियर अपना जरूर कराना चाहिए अगर कि 65 से कम एज है हमारी। 21 ईयर्स से ही लेके हमको अपना पैप्समियर शुरू कर देना चाहिए कराने के लिए। पैप्समियर क्या चीज होती है? पैप्समियर होता है कि जब हम बच्चेदानी के मुंह का जो होता है ना वो एक टेस्ट लेते हैं, मतलब बहुत ही आसान होता है, ओपीटी में होता है, बिल्कुल पेनलेस होता है ये। तो ये पैप्समियर टेस्ट होता है, ये बताता है कि हमको कोई बच्चेदानी का कैंसर तो नहीं हो रहा है। ये मतलब ये इतना जबरदस्त टेस्ट है कि ये कराने से हमको होने से पहले ही पता लग जाता है कि होने वाला तो नहीं है, तो हम उसका ट्रीटमेंट, उसका मैनेजमेंट सब स्टार्ट कर सकते हैं और इससे बचा भी जा सकता है। फिर उसके बाद हमको रूटीनली अपना मैमोग्राम कराना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज आपको हम बीच में बता दें कि ये मीटिंग 10 मिनट्स में एंड होगी और फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे रहिएगा। तो मैमोग्राम जो होता है वो होता है ब्रेस्ट का चेक, एक एक्सरे जैसा होता है। इसको हमको 3 साल में सालाना करा लेना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40, स्पेशली 35-40 ईयर्स के बाद हमको कराते रहना चाहिए। स्पेशली अगर आपकी फैमिली में किसी को ये हिस्ट्री रही है ब्रेस्ट कैंसर की या ओवेरियन कैंसर की तो आपको जरूर कराना चाहिए इसे। ठीक है। उसके बाद यही होते हैं, ये जो मेन टेस्ट होते हैं ये वाले होते हैं। फिर अ, काफी कुछ पॉइंट्स आलियाबाजी ने कवर किए हैं कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है। सो एंजाइटी और डिप्रेशन और ये लो मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, इसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योगा, बहुत बहुत हेल्प करते हैं इसको। बाकी ये है कि इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है और बायोइडेंटिकल हार्मोन्स होते हैं। बायोइडेंटिकल हार्मोन्स जो है वो अभी कम दिए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन होते हैं जो कि आर्टिफिशियल हार्मोन्स हम लोग देते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या एज है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, HRT जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो यूजुअली हम लोग शुरू करते हैं अगर कि बहुत सिवियर होते हैं ये सिम्टम्स औरतों में। अगर कम होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल हो रहे हैं कि हाँ भाई ये जो सभी को होता है कि हमको ब्रेन फॉग हो रहा है, हमको मतलब हमें नींद नहीं आ रही है, या फिर हमें पैरों में दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ये सब के लिए तो हम नॉर्मल नॉर्मल सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे कि हमको विटामिन डी जरूर लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद और ये सब चीजें ना खाने से भी आ सकती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, विटामिन डी है। उसके बाद सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि सोया प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो मिमिक करते हैं, मतलब वो एक्ट करते हैं एस्ट्रोजन की तरह। तो सोया प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी गुड मीनोपॉज के दौरान। और सोया प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं? ये मिलेंगे आपको डेयरी प्रोडक्ट्स से, टोफू से, फिश से। और जैसे ये हो गया आपका, तो विटामिन डी हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया जो कि आपको नींद के लिए बहुत जरूरी है, आपकी मसल्स को अच्छा रखेगा, आपकी बोन हेल्थ को अच्छा रखेगा। विटामिन डी भी सेम चीजें हैं कि वो आपके एस्ट्रोजन को डिक्रीज करता है, आपके मूड को अच्छा रखता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। उसके बाद मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। मल्टीविटामिन्स अगेन हमको क्या करेगा कि वो हमारी ये जो डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी है ना ये कम कर देता है और हमारे मूड को अच्छा रखता है, हमको एनर्जी देता है। तो ये सारी चीजें होती हैं सप्लीमेंट्स के तौर पे जो लेनी चाहिए। अब जैसे ये मीटिंग फिनिश होगी उसके बाद जो ज्वाइन करेंगे, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पूछें हमसे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में या कोई डाउट है तो वो हम एक के बाद एक करके उसको क्लियर करेंगे। अच्छा, मीनोपॉज में यूटीआई की प्रॉब्लम्स बहुत होने लगती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन की प्रॉब्लम्स के बार बार इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप ब्लड शुगर अपना चेक कराएं। और क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है ना वो कम हो जाता है, उसकी वजह से ड्राइनेस होने लगती है हमारे इंटीमेट एरिया में, इसलिए हमको वहां पे ड्राइनेस की वजह से खारिश होगी, हमको इन्फेक्शन होंगे, बार बार हमको यूरिन करने में जलन परेशानी होगी। तो ये है प्रॉब्लम। और अब नाउ इट इज ओपन, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू द theory part of menopause. You can now ask me what you are dealing with and I will help you understand it better and guide you through it. एक्चुअली द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइट, तो Yeah. सीड साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है? अभी मेरा वही चल रहा है कि लाइक मेनोपॉज Seed इन cycle, yeah. हाँ। You are doing seed cycling?
No, I want to understand that. I've read about that. I've not started doing anything. But in Okay. between, like last year, मेरे को बहुत ज्यादा bleeding हो गई थी. तो that time I was eating flaxseed. तो some हाँ of my, I mean, doctor told, she was a radiologist, कि stop हाँ flaxseed at all. हाँ जब bleeding ज्यादा हो रही थी. और अब ऐसा है कि 3 महीने से periods नहीं आए. हाँ। ओके, सो देखो ये जो सीड साइक्लिंग होती है ना, ये आपको डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट विल गाइड यू थ्रू इट, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट seeds are full of magnesium. They are very very good to help you sleep, muscle relaxation, आपका mood ठीक करना, आपकी anxiety depression ठीक करना. Very good. Seeds, nuts, seeds जितने भी होते हैं ना, flax seeds हो गए, Brazil nuts हो गए, और आपके क्या कहते हैं pumpkin seeds हो गए, ये सब बहुत अच्छे हैं. और जो सीड साइक्लिंग है वो यूजुअली वी एडवाइज, आई मीन नॉट एज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, बट या डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट आर एडवाइजिंग इट फॉर पीसीओडी, जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उसके लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपके पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं समहाउ. So seed cycling is that it is if you are in a perimenopause and menopausal age group, then seeds will definitely help you boost your energy और आपके मसल रिलैक्सेशन के लिए. नहीं, जैसे भी मैं बोल रही हूँ कि 3 months हो गए मुझे periods नहीं आए, and I'm 44. So अब 44. ऐसा लगता है कि हाँ, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, because obviously जब जल्दी होता है तो then you have ample of problems, जैसे आपने मेंशन की. Yes, सो उसके yes. लिए जैसे कुछ सीड्स मिमिक करते हैं, एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करते हैं, तो वो सीड्स ले सकते हैं जो एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करते हैं, ताकि पीरियड्स बिल्कुल हों रेगुलर. बिल्कुल बिल्कुल आप ले सकती हैं, लेकिन मतलब फिर भी आप अपना हार्मोन जरूर टेस्ट कराइए. हार्मोन में क्या टेस्ट कराना है आपको? आपको कराना है एफएसएच टेस्ट का. ठीक है, एफएसएच. दिस टेस्ट विल टेल यू फॉर श्योर कि आप पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में हैं या फिर आपको मेनोपॉज होने वाला ओके. है, कितने साल में होने वाला है, ये सब कुछ बता सकता है ये एफएसएच. सो आप एफएसएच टेस्ट कराइए. आप जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रही हैं, आप मतलब धीरे से आप उनसे कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम ये करा सकते हैं, बिकॉज आप डायरेक्टली बोलते हैं तो फिर बुरा लगता है ना कि हमको ये कराना है, ये बताएगा, बट ओवर द हमको काउंटर किसी भी ने करा बताया. सकते हैं? एफएसएच टेस्ट ओवर द काउंटर करा सकते हैं? आई डोंट थिंक सो. आपको लिखवाना पड़ेगा कहीं से, लेकिन बहुत सारी क्लिनिक्स में हो भी जाता है, आप जाके करा सकते हैं, और आप उसकी रिपोर्ट हमको भेज दीजिए. आई विल टेल यू. और यस, और बिकॉज लेकिन अभी आपका मैं लास्ट ईयर जुलाई में मैंने सारे टेस्ट रन कराए थे, बिकॉज मेरा 2-3 महीने हैवी ब्लीडिंग हो गई थी, तो हीमोग्लोबिन बहुत स्लैश हो गया था उस चक्कर में. नहीं, तो जब आपको तो बहुत हैवी उसके बाद ब्लीडिंग हुई थी तो आपने अल्ट्रासाउंड कराया था अपना? क्योंकि अल्ट्रासाउंड से भी पता चलेगा हाँ, कि तब आपके कराया था. यूट्रस और हाँ, तब मैंने कराया था. तो इंडिया में जब मैं थी उस टाइम, तो एक्चुअली 2-3 महीने तो मैंने देखा कि भाई, क्योंकि सब लोग बोलते हैं एज है, होता है. सो हम्म. जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उस टाइम डॉक्टर ने एक्चुअली कहा था कि आपको रेगुलर, जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, आई थिंक पीरियड्स के 15th डे में कराया था. हम्म. सो बोला एक बार अल्ट्रासाउंड अब बाद में, आई थिंक जैसे पीरियड्स खत्म होते हैं तब कराना बेटर होता है. तो उस टाइम उसने कहा था थोड़ी सी एंडो, वो जो होता है ना, यूट्रस लाइनिंग थिक हो जाती है, एंड्रोमेट्रियोसिस समथिंग, हाँ क्या बोलते हाँ, हैं उसको. हाइपरप्लेजिया, हाँ. एंडोमेट्रियल तो वो, हाइपरप्लेजिया. तो मुझे गायनिक ने बोला था कि देखना, और उसने मुझे मेडिसिन दी थी, हम्म. कि अगर ज्यादा हैवी पीरियड्स होते हैं तो मेडिसिन लेना. पर उसके बाद वो साइकिल नॉर्मल था, तो मेडिसिन मैं इंडिया से कैरी करके आ गई थी, बट मैंने ली नहीं थी. और हम्म. अब ये है कि 3 महीने से आए नहीं है पीरियड्स. और पहले भी ऐसे हुआ अच्छा. था सेम, कि 3 महीने आए नहीं थे, फिर जब आए तो बहुत ज्यादा आए. हाँ, तो देखो ये जो सिम्टम है ना, अगर आपका अल्ट्रासाउंड ठीक है और आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है यूट्रस एंड ओवरीज की, थ्रू अल्ट्रासाउंड जो भी पता लगा है, दैट मींस यू आर इन योर पेरीमेनोपॉजल फेज. तो पेरीमेनोपॉजल फेज में क्या होता है कि पीरियड्स आपको इरेगुलर आते हैं, कभी कभी 2-3 महीना नहीं आएंगे, फिर आने लगेंगे, आएंगे तो बहुत हैवी होंगे, या फिर बिल्कुल स्पॉटिंग स्पॉटिंग से आएंगे. तो ये पेरीमेनोपॉजल फेज का बहुत नहीं, पर कॉमन जैसे मेरे सिम्टम बहुत हैवी आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था सेम मंथ्स में ही, कि है. दिसंबर जनवरी फेब नहीं आए थे, फिर जो मार्च अप्रैल में आए, इट वाज वेरी हैवी. हम्म. उसके कारण मेरा हीमोग्लोबिन वाज स्लैश टू 5. हाँ, ओके ओके. तो आपने फिर क्या किया उसके बारे में हीमोग्लोबिन के लिए? एक आध महीना तो मैं अनअवेयर थी, कि मुझे हाँ. लगा कि मतलब नॉर्मल हो गए, पीरियड्स हैवी हो गए. मैंने कुछ, डॉक्टर ने मुझे, एक्चुअली मेरे को लगा था कि एलोपैथी मेडिसिन, मैंने होम्योपैथी मेडिसिन कुछ ली थी, उससे पीरियड स्टॉप किए थे 2 महीने. हम्म. जब हैवी आए थे ना, एक नहीं, महीने तो जब मैंने कुछ किया ही आप नहीं, बिकॉज 20 days चले थे. हाँ, तो ये जो 20 डेज पीरियड चले, इसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड कराया था, अल्ट्रासाउंड इज कम्प्लीटली नॉर्मल राइट, उसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम. अगर आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है या नहीं. एंडोमेट्रियल कैंसर, कंटिन्यू करें.
And Sana, one more thing, dear. I received a query on my personal number from someone. They are saying like the challenges which you told, no, which we face during premenopause and menopause. Along with them, if you can give them 1 month suggestion how to ward them off, so that would be helpful for them. Okay. I Yeah, actually we were told them discussing. that they should take supplements या फिर ये जो breathing exercises हैं. I mean, आपको डॉक्टर के पास जाके supplements तो लेने ही पड़ेंगे. यही होता है एक menopause का. और बाकी जो उनकी problems हैं, she can ask me what her challenges are. You can message her back. Yeah, I have told her. Basically वही होता ना क्या in our daily food intake we are not taking Okay. the full amount of समझ गए. वो foods का पूछ रही हूँ. Yeah, I will tell. No, I'm just telling to everyone that was not her query. She just said that challenges के एक suggestion बताइए. नहीं, it's a good question. Yes. ठीक है. मैं आपसे बात कर रही थी ना, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई. हाँ. अच्छा, तो क्या था कि आपको ब्लीडिंग ज्यादा थी ना, तो आप ब्लीडिंग ज्यादा थी, उसके बाद 6 मंथ तक नॉर्मल पीरियड. उस टाइम तो मैंने मेडिसिन लेके कंट्रोल की थी. उसके बाद 6 मंथ नॉर्मल आए. अभी फिर 3 मंथ से नहीं आए. हाँ, ठीक है. तो फिर आप इस तरह से कर सकती हैं कि आप हार्मोनल पिल्स पे रह सकती हैं 3 मंथ्स तक ना. आप जो हम लोग देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उस पे आप कर सकती हैं. और अगर आपका यूट्रस वगैरह सब ठीक है तो आप मायरीना लगवा सकती हैं, जो कि हेवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है. और उसके बाद मैं कह रही हूँ ब्लीडिंग मेरी थी 2 मंथ्स ज्यादा हुई थी. उसके बाद 6 मंथ अभी नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल साइकिल होता है. उसके बाद 6 मंथ बाद अभी फिर से 3 मंथ से नहीं आया, 3 मंथ से. सो अब क्या करना चाहिए? लाइक अब ये आपको करना चाहिए कि आपको अपने हार्मोनल टेस्ट्स करवाने चाहिए. और अगर वो नॉर्मल हैं और आप अपने पेरीपिनोपॉजल फेज में हैं, आप ओसीपीज पे अपने आप को कर लीजिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लेकिन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के कि किस तरह से करना है, कितने कितने दिन पे खाना है. ये 3 मंथ्स का साइकिल होता है. जब आप ये कंप्लीट करेंगे ना, तो आपके नेक्स्ट 8-10 मंथ्स आपको रेगुलर साइकिल्स आएंगी. बट यू मस्ट प्रिपेयर दैट ये पेरीमेनोपॉजल फेज है, तो इस तरह से आपको होगा. और आप अपने 6 मंथ्स पे अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए और ब्लड शुगर टेस्ट. ठीक है. ब्लड शुगर तो अभी आप कह रहे हैं हार्मोन का चेकअप कराऊं पहले, मतलब गायनेक करके एफएसए? हाँ, अभी आप सिर्फ अपना थायराइड जरूर करवाइए. वो कराने के बाद थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. थायराइड कैन आल्सो कॉज दीज ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स. सो थायराइड और अपना जो 2-3 हार्मोन्स वो बताएंगी, उसमें से एफएसएच इज इम्पोर्टेंट. सो ये कराइए और ब्लड शुगर लेवल्स कराइए. इससे आपको फॉर श्योर आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे हार्मोन्स कहाँ तक ऊपर नीचे हैं. और अपना ये हार्मोनल पिल्स पे रहिए, आप ठीक हो जाएंगी. नॉट टू वरी. बिकॉज और हार्मोनल पिल्स के बाद फिर वेट, जैसे आपने कहा, जो अपन लेते हैं हार्मोनल पिल्स टू बैलेंस द हार्मोन. हाँ. तो देखिए, वेट गेन का क्या करना है कि जितने भी हम फीमेल्स होते हैं पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल एज ग्रुप में, जैसे ही हमारा एस्ट्रोजन कम होता है ना, हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, स्पेशली अराउंड द एब्डोमिनल एरिया. वो कम ही नहीं होता किसी भी तरह से. जितना हम चाह लें वो बहुत मुश्किल से जाता है, मतलब जाता ही नहीं है. मलाइका अरोरा का चला जाता है और किसी का नहीं जाता है. हार्ड वर्कआउट करना पड़े फिर उतना. एक्चुअली यस. तो उसके लिए वर्कआउट इज इम्पोर्टेंट. लेकिन हाँ, सब लोग नहीं जा सकते ना, जिम में इतना टाइम नहीं होता, या कोई और भी हमारे जो भी शेड्यूल है. तो आप अपने डाइट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ाएं, फाइबर ज्यादा बढ़ाएं. तो इससे आपका डाइट मैनेज होगा. और थोड़ी सी एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आप जिम जाके हैवी वेट्स उठाएं. एक वॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 10-15 मिनट्स की वॉक भी बहुत बहुत फायदा करती है. कि आपने ब्रिस्क वॉकिंग, ये नहीं कि टहलते हुए जा रहे हैं, टहलते हुए चले आ रहे हैं, वो कुछ नहीं करेगा. ब्रिस्क वॉक करिए. ठीक है. या any other queries you can just ask me. You can send me your reports. I will help you through it. Okay, thank you. Yeah, welcome. Yeah, hi ma'am. This is Lakshmi here. Yes. Yeah, ma'am. Actually, I'm 49 years old and I'm already from last 1 year having this period problem. Like every 3 months I'm getting periods. So I'm into perimenopause. I have done all the tests and everything, and ultrasound. Every 3 months I go to doctor. Last period was mine, like delayed 4 months.
तो मेरी गायनिक ने मुझे टैबलेट दिया पीरियड आने के लिए. सो देन आफ्टर दैट लाइक माय क्वेश्चन इज कि वर्कआउट करना चाहिए थोड़ा सा वेट रिड्यूस की, क्योंकि आई एम पुटिंग ऑन टू मच बिकॉज आई एम हैविंग थायराइड फ्रॉम वेरी लॉन्ग, फ्रॉम लास्ट तो ये 12. आपके कॉज हो गए वेट गेन करने का, एक तो थायराइड और एक एस्ट्रोजन लो. ठीक है. यस यस. तो फिर लास्ट 13 years से आई एम ऑन लाइक ये अपना हार्मोन लाइक एक्यूरॉक्स. यस. सो लाइक अभी वर्कआउट करना है नहीं, उतना स्टेमिना ही नहीं है. कुछ भी थोड़ा सा भी मैं करती हूँ, अराउंड 1.5 hour का हमारा यानी योगा प्लस मेडिटेशन होता है सुबह. तो उसके बाद कुछ भी थोड़ा सा भी करने जाओ तो बिल्कुल स्टेमिना नहीं है बॉडी में. तो हाउ डू वी लाइक मेक आवरसेल्फ लाइक थोड़ा सा फिट एंड फाइन की थोड़ा और ज्यादा कुछ कर सके. जी, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कि आप एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करिए कि हमको बहुत एक्सरसाइज करनी तभी हमारा वेट कम होगा. ऐसा नहीं होगा. वॉक से शुरू करिए. जैसे अभी हमने कहा, आपको अच्छी वॉक करिए, 15 मिनट्स तेज चल के जाइए और वापस आइए. ठीक है. वॉक इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद डाइट पे बहुत ध्यान रखना है कि जितना भी आप खा रहे हैं, एकदम से तो नहीं होता ना कि हमको डाइट पे जाना है तो हम सब बंद कर दें एकदम से. दैट डाइट डजंट वर्क. बिल्कुल नहीं काम करेगी. तो अगर आप जैसे 2 रोटी खा रही हैं तो धीरे धीरे उसको 1.5 कर दीजिए, 1.5, देन 1 में भी, बट 1 पे रहिए. बिकॉज हमको अपना बॉडी का भी देखना है कि हम कितने टॉल हैं और हमारा कितना वेट है ऑलरेडी. तो हमें उस हिसाब से कम करना है. एकदम से कोई डाइट पे, क्रैश डाइट पे नहीं जाना है. उसके बाद ये जितना भी स्टैमिना है ना, ये सब आएगा डाइट से और सप्लीमेंट से. तो सप्लीमेंट्स पेरीमेनोपॉजल एज में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी जी, वो है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की टैबलेट्स आप जरूर लें. 300 I have started. Yes, very good. तो मैग्नीशियम इज इम्पोर्टेंट. और विटामिन डी. That also I have started. I have started for uric acid also is like my rating is little upset, तो उसके लिए भी मेडिसिन दिया गया है, वो भी that is also I'm on. हाँ, तो अगर आप नॉन वेज ज्यादा खाते हैं तो उसमें रेड मीट कम करना है और दालें कम करनी है. कम करना है. नहीं, twice a week, यानी एक बार कुक होता है तो मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 times we eat actually mutton and 1 fish and once chicken in a week. This is Fish our is okay. like. Fish is very good for me. Fish is okay. Fish अच्छी होती है पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल एज ग्रुप में, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके मूड को स्टेबलाइज करने के लिए और आपके ये हार्ट हेल्थ के लिए. आपकी जितनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है ना, ये जितना आप वेट गेन बता रहे हैं ना पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में, ये इन्फ्लेमेशन से भी होता है. बहुत कॉमन होता है इन्फ्लेमेशन पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप के लिए. तो आप इसके लिए एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल भी करिए. ठीक है. Yeah, that is also done. I was having like a fatty liver, very little, like the rating was little high. Actually, the doctor said, nothing to worry, just आप walk करो, उससे हो जाएगा. But the thing, as I said, even for walking के लिए मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं, क्योंकि 15-20 मिनट भी मैं घर पे, मेरा वो है ट्रेडमिल है, तो मैं कर लेती हूँ. बाहर जाना मेरे से होता नहीं है, तो फिर मैं घर पे ही कर लेती हूँ. बट 15-20 मिनट में मैं इतना, और उस दिन का मेरे को एक्चुअली ज्यादा हो जाएगा. योगा प्लस वॉकिंग दोनों मिला के मेरे पूरे पुर्जे दुखने लगेंगे. तो फिर नेक्स्ट डे मेरा पूरा लाइक शेड्यूल अपसेट हो जाएगा. तो फिर मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ. इतना नहीं करिए आप. अगर जिस दिन योगा कर रही हूँ उस दिन वॉक नहीं करिए, जिस दिन वॉक कर रही हूँ उस दिन योगा नहीं करिए. योगा तो मेरा रेगुलर 5 days a week रेगुलर रहता ही है, विदाउट फेल, लाइक. तो योगा तो होता ही है. तो आप उसको कम कर दीजिए. आपका ये जो स्टैमिना है ना, ये बिल्डअप होगा. आप थोड़ा कम करिए. आई थिंक आपको रोशनी और फातिमा बहुत अच्छे से समझाएंगी कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी हमारा नुकसान है इस एज में स्पेशली. तो आप एक्सरसाइज का, जैसे आप योगा करिए ना, आप उसको 3 days कर दीजिए. 5 days आप करिए, आप उसको 3 days कर दीजिए. बाकी के 2 दिन आप वॉक करिए. वॉक आपको 15 मिनट्स नहीं होती, आप 10 मिनट्स करिए, 5 मिनट्स करिए. बट अगर आप बाहर निकल के करेंगे ना, तो आपके ये मूड के लिए भी बहुत अच्छा होगा. आपका एंजाइटी डिप्रेशन कम होगा. बिकॉज ऑफ कोर्स जो नेचुरल एयर में आप करेंगे वो बहुत अच्छा होगा. और आजकल तो बहुत अच्छा मौसम भी है, सो यू कैन जस्ट गो आउट एंड हैव अ वॉक. इट विल रियली हेल्प यू. बट सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको ध्यान से लीजिए और अपना आयरन लेवल चेक करा लीजिए. आपका इतना जो थकान हो रही है, हो सकता है आयरन कम हो आपका. क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर हमारा वेट बढ़ा है तो हमारे अंदर सारी चीजें बढ़िया है.
ऐसा नहीं होता है। बहुत बार हम अंदर से बिल्कुल कमजोर होते हैं, पर हमारा वेट होता है जो कि जेनेटिक भी होता है कभी कभी, या फिर जैसे Yeah, that is there actually, because we are all double XL in the family, like my right from my mom and my aunts. So हम सब लोग like ऐसा ही है, तो फिर that is one point. Second is thyroid, third is my this period, like. So all together I'm not able to, because my diet is very poor, to be honest. मैं बहुत कम खाती हूँ, फिर भी जाके मेरा वेट में कुछ like fluctuation any नीचे तो कभी जाता ही नहीं. ग्राफ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हायर साइड. तो अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी डाइट पुअर है, तो प्लीज डाइट पे फोकस करिए कि आपको खाना जरूर है कि ब्रेकफास्ट भी लीजिए, लंच भी लीजिए, डिनर भी लीजिए, स्किप मत करिएगा मील्स. बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम स्किप करेंगे तो हमारा वेट कम होगा, ऐसे होता नहीं है. करती हूँ, लेती हूँ, बट द क्वांटिटी इज वेरी लेस एक्चुअली. सी लाइक 2 idlis और 1 dosa is my like breakfast, or just a bowl full of poha, like that. Like in lunch के लिए एक रोटी और 2 सब्जियां, like that, and with little bit of salad. Salad कभी मिस हो जाता है बीच में, but yes, it will be there. And dinner, yes, I have to admit this, the dinner is little bit हमारा जैसे heavier side होता है, क्योंकि स्पेशल चीज रात को ही बनती है, बिकॉज हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो लोग मिलके खाना एक ही बार होता है वो, तो फिर दैट इज लाइक लिटिल स्पेशल, लाइक हर नया वैरायटी रात को बनते हैं. तो बस रात में खाना का अगर आप बहुत लेट खाती हैं तो एकदम से खाना खा के सोइए नहीं, ये है नहीं. हाँ, वो भी नहीं है. एटलीस्ट 2 आवर्स के बाद आप सोइए, और अर्ली डिनर करेंगे तो बहुत अच्छा है. हाँ जी. Okay, thank you so much. How much magnesium we should take, as you were suggesting in this stage? Sorry? How much magnesium is required to take? Magnesium requirement is usually 300 milligrams per day. बट ये आप अपना पहले असेस करवाइए. ये नॉर्मली होता है 300 मिलीग्राम्स हम लोग देते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस में. बट अगर ज्यादा ही कंप्लेंट्स हैं और तो उसके बाद हमको मैग्नीशियम टेस्ट करा के देना चाहिए, लेकिन आप 300 मिलीग्राम से स्टार्ट कर सकती हैं. Hello, doctor. Can I ask something? Of course. Yeah. So I am also, my age is 52 now. Okay. So I'm already on menopause. Okay. From last 1 year, I didn't get a period. Okay. So I already started the meno age. Okay. That one tablet doctor suggested, but I took it for 1 month. Now, can I start that again, or I need to just wait for a month? नहीं, मेनो एज आपने बताई. Meno is menopause. Are you in UAE? Yes, I'm in UAE. So it is menopause actually. Menopause. Let me compliment you first, Shailja ji. आपका जो पीछे घर में डेकोरेशन, it's very very nice. Thank you. Yeah, I love it. Thank you. And yes, of course, you don't need to wait for anything. You can start menopause again. So menopause में generally सारे components होते हैं जो कि हम menopause के लिए देते हैं. But still, I would advise you कि आप vitamin D extra लें. I'm taking, ma'am. I'm taking, doctor, vitamin D, calcium. I'm taking. Yes, and magnesium composition is there in a calcium only, so that only doctor suggested. So just check that how much magnesium is there, because sometimes we are taking calcium tablets also, उसमें होता है 100 milligrams, micrograms calcium. Okay, you are telling 300. 300. Yeah, at least 300 होना चाहिए. ठीक है. Okay. Last week I gave my blood test for an iron. You suggested somebody, iron profile and everything. I gave for an iron and other vitals also. So I'm waiting for the result. Then I'll go for an iron tablet, whatever the doctor said. If your iron level is low, then you can start with iron also. Yeah, the same thing what Lakshmi said. Iron, I will just tell you something, that whenever you are taking iron supplements, don't take it with food and don't take it with calcium. तो आपके मतलब ज्यादातर अच्छा रहेगा कि अगर आपने खाली पेट में लिया हो आयरन, बट अर्ली मॉर्निंग नहीं, लेकिन जैसे दोपहर और रात के खाने के बीच में ले लीजिए, या फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ले लिया. दैट विल हेल्प यू. आयरन एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है. Okay, thank you so much. So thank you. One small question. I just wanted you to, address what we should, expect in menopause period actually.
पूरे पीरियड स्टॉप हो गए, उसके बाद like how long, what consequences will be there, what problems, what changes in body, what we can expect now? अभी आपने पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज बताया, पोस्ट मेनोपॉज के बारे में आई जस्ट वांट टू नो। पोस्ट मीनोपॉज ही, जो मीनोपॉज एरिया एज है ना, वही पोस्ट मीनोपॉज में भी जाएगी। सो अगर आपने अपने पेरीमीनोपॉज और मीनोपॉजल एज ग्रुप को समझ लिया है और वहीं से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, अपने सप्लीमेंट स्टार्ट कर लिए हैं, तो आपको बहुत बहुत हेल्प होगा मीनोपॉज में। मीनोपॉज में क्या होगा, जैसे जैसे आप मीनोपॉजल एज ग्रुप में जाते जाएंगे, योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, योर रिस्क ऑफ डायबिटीज, योर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, स्मॉल बोन फ्रैक्चर्स, ये सब इंक्रीज करेंगे। स्किन ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, रिंकल्स आते हैं, और लेट मी टेल यू इन गायनेकोलॉजिकल वर्जन के आपकी वजाइनल ड्राइनेस बहुत होती है, जिसकी वजह से बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इचिंग होगी, या फिर यूरिन इन्फेक्शन होगा, या वहां पे रेडनेस होने लगती है लोअर एरिया में। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, ये मुझे हो रहा है, तो ये मीनोपॉज के कारण हो रहा है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, और वहां पे वो आपको एक अप्रोप्रिएट क्रीम्स वगैरह हम लोग अप्लाई करने के लिए बताते हैं आपको, नॉट नॉर्मल क्रीम्स। प्लीज आई एडवाइज अगेन एंड अगेन, कोई भी तरह का वॉश नहीं यूज किया करिए आप लोग इंटीमेट एरिया के लिए, बिकॉज इट इज नॉट गुड एट ऑल। मतलब बिल्कुल ही नहीं अच्छा होता है वो, ठीक है, उसको नहीं करना है। लेकिन आपको डॉक्टर आपके एस्ट्रोजन क्रीम्स होते हैं, या फिर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट की चीजें होती हैं, जो कि हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आप ये लीजिए। उसके बाद आपके डाइट से ये मिल सकता है एस्ट्रोजन, जैसे कि अभी हमने पहले भी बताया था आपको, जितने ये सोए आइसोफ्लेवोन्स होते हैं ना, प्लांट बेस्ड होता है ये एस्ट्रोजन, जैसे कि हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है, ये प्लांट बेस्ड होता है। तो ये सोया मिल्क से बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपको सोया मिल्क का टेस्ट कैसे भी पसंद आ सकता है, तो आप वो खाइए, टोफू खाइए, और सोयाबीन बहुत अच्छा होता है ये सब मेनोपॉज के लिए। हेल्पफुल? Yes, ma'am. Thank you so much. Okay, Hannah, welcome. hi. I've been trying to, talk. So Yeah. I needed to know कि ये जो hormone replacement therapy, it's very, very controversial. Yes. So supposing I'm in a perimenopausal, I mean, because of the thing, quite possible. So Mm. supposing I'm in that stage, then there's so much contradiction. They say you get breast cancer and things like that. So So I'm a little reluctant in that area. So yes, what is your take on that? yes, Nagin. First of all, hello and welcome. Nice to Hi, see you you're here. doing a great job. A lot of queries being answered so well. Yes, thank you. Yeah, you're fantastic. Both you and Alia Baji, both of you are fantastic. Absolutely. Thank you so much. So are you. So Nagin, this is a very, very, very good question actually. HRT हम लोग normally नहीं start करते हैं. We have to go through a series of tests के just like you know already कि इसमें breast cancer के chances ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर आपको endometrial cancer के chances ज़्यादा हो सकते हैं। और आपके क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो रहा है, तो आपको obviously अगर हम एकदम से बढ़ाएंगे तो कुछ भी हो सकता है उससे। तो हम हर किसी फीमेल को नहीं एडवाइस करते, ना ही हम लोग देते हैं। इट इज नॉट अ रूटीन थिंग दैट हैज टू बी गिवन टू एवरीवन। वी टेक इन माइंड दैट हमको अपने हार्मोन टेस्ट जरूर कराने हैं, उसके बाद हमको मैमोग्राफ कराना है, हमको पैप स्मीयर कराना है। If all this is okay, then we go to the symptoms. Sometimes the perimenopausal menopausal phase इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लोगों को suicidal thoughts आने लगती हैं। So when it is to that level, then we start HRT. उससे पहले हम नॉर्मल तरह से उनको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज वेयर योर जॉब कम्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स कम इन दिस व्यू। तो ये लोग बहुत हेल्प करते हैं। अगर पेशेंट हमको लगता है कि शी इज गोइंग इन दैट फेज, इन दैट लेवल कि ये बहुत खराब हो सकता है, तो हम लोग उनको जरूर एडवाइस करते हैं कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अपना थोड़ा सा सेशंस लीजिए, एक्सरसाइज लाइफस्टाइल पे फोकस करिए, और उनको बात करने की जरूरत है। फाइटोएस्ट्रोजेंस को कंज्यूम करना है। टॉकिंग अबाउट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं ना कि अब तो हमारा खत्म, टाइम खत्म हमारा। ऐसा थोड़ी ना होता है, अब ये तो हमारा टाइम शुरू होता है इसमें। तो वी हैव टू टेक इन आई मीन वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कि ये होगा हमारी बॉडी में, ये चेंजेस होंगे, एंड वंस वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट,
पब्लिकली, कि हमको पब्लिक अवेयरनेस आएगी, तभी लोगों को समझ में आएगा कि ओके दिस फीमेल इज गोइंग थ्रू दिस फेस, वी हैव टू डील इट विद सेंसिटिविटी, वी हैव टू डील इट विद एम्पैथी। तो ये बहुत जरूरी है, इसके लिए बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट टॉक अबाउट इट, एवरीबody is embarrassed to talk about it. Why? We shouldn't. Absolutely, it's a taboo. It's a taboo, yeah. तो Yeah, I जैसे understand. पहले things So were HRT is the last resort, right? Yes, It's HRT is the last resort. Or nowadays we have bioidentical hormones, which are artificial hormones, which we are giving like in the form of pellets. मतलब हम स्किन के नीचे उसको लगा देते हैं इंक्रीज करने के लिए हॉर्मोन्स। तो ये सब भी लास्ट रिजॉर्ट्स होते हैं। इनफैक्ट यूएई में तो बैन है I टेस्टोस्टेरोन के see. पेट्रोल लगाना, या बट इन अमेरिका ऑल दे डू इट रूटीनली, कि वो भाई लिबिडो Yeah, बढ़ाओ yeah. आपको। Yeah, that's why I was. So रखेगा। the other way to increase the estrogen would be, I think, to consume, phytoestrogens like soya products. Yeah. Yes, Yeah. diet is very important and supplements are very important. It does help. जैसे ही आपने अपने mentally strong बना लिया ना अपने आप को, और accept की इस situation को, you will start working on it and it will help you for sure. Thank you. Thank you. Yeah, doctor. Hello. हाँ, questions from Fatima Hania. iPhone पर कौन है? They have raised their hands from a long time, I think. तो Just जिन्होंने there. long time किया उनका question पहले करिए। Can we have Fatima's query quick before the link, gets disconnected again? And Hania is Thanks, there. Alia. I just wanted to ask, you just said कि lentils भी avoid करना चाहिए, and I heavily rely on lentils. नहीं lentils Did I menopause के लिए misheard you? नहीं, lentils menopause के लिए नहीं बोला हमने, वो लक्ष्मी जी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी उसके लिए बोला था। Okay, that's all. Yes. Thank you. Okay. Yeah, hello डॉक्टर। सप्लीमेंट्री अगर नहीं लेना हो तो उसकी कोई होम रेमेडी या कोई डाइट पे कोई अच्छा सा बिल्कुल। जैसे कि हम आप मतलब समझिए, हम एक एक करके आपको बताते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, मेरा प्री मेनोपॉज चल रहा है, मतलब 36 एज से मेरे को पहले बहुत हैवी ब्लीडिंग हुआ और मेरा वो बर्थ कंट्रोल का ऑपरेशन भी हो गया था 35 एज में। ओके, फिर उसके बाद 1-2 साल बाद बहुत हैवी ब्लीडिंग हुआ। मेरा वेट भी, मैंने अच्छे से वेट भी मतलब रिड्यूस किया ये वो, पर अचानक से 2-3 दिन मेरे को इतना वीकनेस हो गया कि मेरे को ड्रिप वगैरह चढ़ा। फिर 1 साल के बाद, फिर 6 महीने के बाद रेगुलर पीरियड, फिर अचानक से बंद। अभी फिर बिफोर 2 मंथ्स रेगुलर थे सब कुछ, बिफोर 2 मंथ्स इतना हैवी ब्लीडिंग हुआ कि आई कुडंट वेक अप फ्रॉम बेड। ऐसा लग रहा था मेरे को टांगे ही नहीं है कि मैं चलूंगी कैसे। अच्छा, तो एक तो सबसे पहले जरूरत है कि आप अपना वो कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड सब करवाया, सब ठीक नहीं है? सब 2 बार करवाया है, दो आई एम इन यूएई, तो मैंने 2 बार अच्छे गायनिक को ही दिखाया है मीडियोर हॉस्पिटल में, और वो सब नॉर्मल है। और फिर अचानक से एक 1-1.5 महीने से फिर मेरा पुट ऑन हो गया है वेट। तो मतलब ऐसे क्या है, फिर वो मेंटली हम वो सोचते हैं पता नहीं अभी मैं कैसे रिड्यूस करूं ये वो, जबकि डाइट नॉर्मल है, बाहर का खाना भी नहीं है इतना, और 30 to 40 मिनट्स वॉक भी होता है, और 15 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज घर पे होता है। ओके। और सप्लीमेंट्री नहीं लेना हो या कोई होम रेमेडी अच्छा वो बताएं। तो देखो, वेट लॉस के लिए तो एज सच कोई होम रेमेडी नहीं होती है, लेकिन हाँ आप, क्योंकि मीनोपॉजल पेरीमीनोपॉजल फेज में इन्फ्लेमेशन बहुत होता है। इन्फ्लेमेशन आजकल आप सुन भी रहे होंगे बहुत ज्यादा, सिंस विद्या बालन हैज लॉस्ट सो मच ऑफ वेट थ्रू इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है ना, वो कम करने के लिए आप बहुत सारी अच्छी डाइट्स होती हैं जो कि आप ले सकते हैं। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने लिया, उसके बाद आपने नट्स को इंक्लूड किया अपनी डाइट में, ठीक है। और ये कोई भी आप, जैसे आपको मीठा खाने का शौक है तो आप मीठा भी खाइए, आप चावल भी खाइए, सब खाइए, लेकिन उससे पहले आप अपना एक फ्रूट या कोई सैलेड जरूर खाइए। तो आपके जितने ये इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं ना, शुगर स्पाइक्स होते हैं, ये कम हो जाते हैं। जैसे एकदम से खा के इतना बढ़ेगा, तो आप फ्रूट और वेजिटेबल्स अगर खाएंगे तो वो इतना बढ़ेगा, तो आपका वेट रेगुलेट रहेगा, ठीक है। अच्छा, नट्स में बहुत अच्छा होता है पेरीपीनोपॉजल और मेनोपॉजल एज ग्रुप में वॉलनट्स। मतलब वॉलनट्स में बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, एंड दीज आर वेरी नाइस
फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन फ्लैक्स सीड्स को ध्यान से खाना होता है कि बहुत एक्स्ट्रा भी ना हो जाए। फिर अगर आप नॉन वेज खाती हैं तो फिश जरूर खाइए, फिश इज नहीं, आई एम वेरी प्योर वेज। ओके। तो वेज है तो फिर बहुत अच्छा है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से ले सकती हैं, कि आप जरूर दही इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, कि रोजाना कोई तरह का रायता बना लिया, कुछ बूंदी डाल दी, कुछ भी तरह से, लस्सी, छाछ, एनीथिंग। और पनीर वेरी पनीर। वेरी, हाँ बहुत अच्छा आपकी बोन्स हेल्थ के लिए, आपके विटामिन डी को ठीक करने के लिए, आपके मूड्स को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा रहता है डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद सोयाबीन इंक्लूड करिए, यस। ठीक है। और होल ग्रेन्स जितने भी हैं, जैसे रागी हो गई, बाजरा हो गया, या नॉर्मल आटा जो है, मैदा बस कम रखिए अपने उसमें। और आप क्या खा सकते हैं, और मेरे ऐसे ही को ब्लोटिंग का भी इशू है, तो मैं सोक फूड भी नहीं खा सकती, लाइक दाल और राजमा और छोला। हाँ हाँ जैसे ही खाते हैं ब्लोट हो जाता है, और मतलब गैस्ट्रिक हाँ। प्रॉब्लम होता है, वो तो नहीं खाती ब्लोटिंग हूँ के मैं। लिए आप गोभी भी मत खाइए, ब्रोकली नहीं खाइए, बेल नहीं। पेपर्स नहीं खाइए, ये सब भी ब्लोटिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं। ओके, कैप्सिकम। कैप्सिकम, हाँ कैप्सिकम, इज इट? या कैप्सिकम लीड्स टू ब्लोटिंग, यस। ओके, वो मेरे को पता नहीं मतलब था। बहुत ज्यादा नहीं खाना है कि रोज हम कैप्सिकम खा रहे नहीं हैं नहीं, और रोज हो नहीं, जाता वंस इन अ वीक कभी कोई सब्जी में आ जाता है क्या? समटाइम्स हाँ। इट्स ओके, या समटाइम्स या थोड़ा बहुत सब्जी में, जो मिक्स सब्जी में हम खाते हैं उससे कोई नहीं होगा। मतलब बहुत सारे लोग रेगुलरली खाते रहते हैं ना, कि आजकल जैसे डाइट्स चली हैं कि हम गोभी को वो करते हैं, कद्दूकश करते हैं, और उसी से क्रस्ट भी बनाते हैं, उसी से डोसा भी बना लेते हैं, उसी से सब कुछ। वो बहुत सारे लोगों को उससे भी ये होता है ब्लोटिंग। ओके ओके ओके। Sana, पर आप even I'm सप्लीमेंट्स लीजिए, आप सब सप्लीमेंट्स विल रियली हेल्प यू, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विल रियली हेल्प यू, एंड मैग्नीशियम विल हेल्प यू, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। and Sana, ओके, I these two think we can supplements. add ओके। here like Sorry, prebiotics, yogurt, and all, no? of course, pro and prebiotics are very helpful. You can take it and you can get it through any fermented foods, जितने भी आजकल होते गट हैं ना, जैसे के इडली benefits डोसा से चल रहे फर्मेंट हैं हो लोग। जाता है आपका, हाँ ये सब से आपको मिलता है, प्रो एंड प्रीबायोटिक्स दही से मिलता है। Hania, can we have her query? Hania? Yes. Hi everyone. Hello doctor. Hello. Actually, I missed out start thing because I had to go to my daughter's school. We had a meeting, PTA meeting. I'm just concerned. Like my mother was a very healthy lady before menopause. Uh, as soon as she got closer to her menopause, she started with all that. She just had asthma before, like, and nothing else at all. Then suddenly, as she got close to her menopause, and now she is into menopause, she for past 1 year, she started with all the complications like the gallbladder issue, then the fibroids, and then the blood pressure high. So, like, is it all? And See, and my concern is that what can I, how can we help her out now in this complication? She's how old is she? very weak. She doesn't have that stamina she had earlier. She's a teacher. She's given education her entire life. But now she's like, she can't even sit for an hour, and she's feeling very tired, and she's feeling very, weak, and all these How old is complications she? are starting. She is in her 50s, late 50s. Oh, that is not very old. So, and you have gone through all the tests, the CBC, Yeah, everything urine, has been lipid done. profile, cholesterol, everything. Yes, she has also high triglycerides. She has also that's what my concern is, like suddenly she has come into everything she was not. She was very healthy, she was active, and she was a very hard working lady when she was young. But now she's left with no energy at all. Like she's Okay. feeling drained out completely. Is there any stress factor going on? कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर एकदम से जॉब छोड़ी हो, या कोई इस तरह का No, एनीथिंग रिलेटेड टू जॉब हर तो वो स्ट्रेस? कर रहे थे, एंड देन ड्यू टू हर हेल्थ इश्यूज only we advise her not to, like, stop. So now she has her own school, like, so she is taking care of that. But stress, like, there is nothing
I Okay. can feel that. Yeah. Okay, so see, menopause will be contributing to आपका cardiovascular disease and blood sugar levels high कर सकता है, ये डायबिटीज को भी कर सकता है और ब्लड शुगर कर सकता है, प्लस बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं कि बोन डेंसिटी कम करेगा और मूड स्विंग्स और ये वो सब होगा. So since she is only in her like late 50s, so I am sure she's going through this postmenopausal thing बहुत बहुत जोर से. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर कि वो 10 मिनट्स 15 मिनट्स कोई भी आप उनको मेडिटेशन वाला ज्वाइन करवा दीजिए. बिकॉज सडनली देखो एक टीचर से आपने बोला कि छोड़ दो आप घर पे बैठो, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली शी इज बीन वर्किंग, शी इज गोइंग आउट, शी इज मीटिंग सो मेनी पीपल, शी इज हैविंग हर ओन टाइम. So suddenly when that person starts sitting at home, even if we think for ourselves, we will go through a phase, we will start thinking so many things. She will not tell you, वो अपने मन में सोचती हैं. तो ये stress levels कम करना बहुत जरूरी है, because stress levels again will derange all the hormones. Okay, so 10 minutes meditation is very very easy. We have so many people in our group who do this online only, तो फिर आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. प्लस अगर उनके सारे हार्मोनल प्रोफाइल्स नॉर्मल हैं तो आप उनको थोड़ा बहुत सप्लीमेंट तो स्टार्ट करिए. और सप्लीमेंट्स में आई विल एडवाइज यू अगेन दैट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मैग्नीशियम और विटामिन D3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मैजिकल रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन कंटिन्यू फॉर 15-20 days and you will definitely see results, good results. Ma'am, you mentioned like flaxseed to a moderate level, but my mother and even my age is like 34, but I've got high triglycerides, like it was 400 something like that. It was very high. It was very high, and I also have fatty liver. So I, without any doctor's advice, flaxseed supplements, I don't think it's any harm. So I take one supplement in the morning, like flax seeds. Flaxseed supplement. So is it no, okay? When I said that take it with caution, it is not कि वो खराबी करता है, because उसको खाने का तरीका होता है ना, कभी कभी वो चोक कर जाता है थ्रोट में. सो वो बताना है कि उसको आप सोक करिए अच्छे से, उसके बाद आप खा सकते हैं उसको, या फिर आप उसको कोई भी अपनी पॉरेज में या पोहा है या जो भी बनाते हैं flaxseed supplement pills. सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं. I don't like the taste of the flaxseed. Very good, actually. Flaxseed have very good omega-3 fatty acids. I cannot eat a spoonful at a time. Yes, correct. तो फ्लैक्स सीड्स का भी एक डोज होता है खाने का, वो आप 1 टीस्पून ही लेना चाहिए. आई थिंक उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ द चोकिंग हैजर्ड स्पेशली. और अगर आप उसको ड्राई लेते हैं, ड्राई तो शायद रिकमेंडेड भी नहीं है लेना, तो आप उसको सोक करिए. और अगर आप सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तो आप उसमें देखिए कि कितना फ्लैक्स सीड है, उसके हिसाब से आप लीजिए अपना. जी 500 आई थिंक. लेकिन आप वो अगर आप सिर्फ डाइट से करना चाहते हैं ना, तो आप वॉलनट्स जरूर खाइए. हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स एवरी डे बहुत बढ़िया बूस्ट करता है. It's good for fatty liver also. No, not for fatty liver. Fatty liver के लिए नहीं, आपकी मदर की मेनोपॉज के लिए बता रहे हैं. अच्छा वॉलनट बहुत बहुत अच्छे रहते हैं. थोड़ा सा वॉलनट दे दीजिए, थोड़ा आपने उसमें कोई सी पंपकिन सीड्स मिला दी, आपने जो मिक्स्ड सीड्स आती है ना, वो सब मिला के आप अपनी मम्मा को दे दीजिए, वो खाते रहेंगे. लेकिन फॉर योर मदर, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू डू इज मैनेज हर स्ट्रेस कंडीशन. अदरवाइज शी माइट गो इनटू एंजाइटी, डिप्रेशन आल्सो, द वे यू आर डिस्क्राइबिंग. थोड़ा सा उनको बाहर निकाल के, मतलब थोड़ा वॉक कराना है, बहुत ज्यादा नहीं कराइए, थोड़ा थोड़ा. She will just sit at her like a house, her home. She doesn't like to get out. She doesn't like to socialize. No, that is not good. I think you should make her friends with Alia Baji. Alia Baji will control all this. Their sister-in-laws, actually. So they are relationship only. She must be knowing about my mother, like how she was, and now she's become complete, like she's got so many complications. Also, doctor, do I have to also take any precaution? Like all these started with my mother during the menopause. So you are 35, I am 34. 34 is very young. And you have how many children? I just have two. Two. Okay, so 34 is very young still to think that you might go into perimenopausal menopausal phase. आप अभी तो normal
अपना डाइट वाइट रखिए, हेल्दी, थोड़ा लाइफस्टाइल हेल्दी कर लीजिए, वो तो कोई भी एज में करना जरूरी होता है, बस ज्यादा नहीं टेंशन लेना है, टेंशन नहीं लेना है, बस ये है इम्पोर्टेंट। टेंशन ले लो। Thank you so much. I think the link will end in a few minutes. So can we just rejoin for 10 minutes and to take queries? Because I think we have Sharika raising hand and there is a query come. Her age is 42 years and she's experiencing irregular periods. So she's saying, is it normal or she should consult a gynec? So for how many months has she had irregular periods? And one more thing she has added is like for perimenopause and menopause, what are the issues for this people, ladies who have had a gallbladder removed? Like gallbladder removal, no, nothing to be worried. Nothing to worry about that. It's okay. Remove हो गया तो हो गया. अब क्या कर सकते हैं उसके लिए ना? Like she's asking 42. Is having irregular, so she should consult a gynec, or it is normal? No, she should consult a gynec, because for how many months she's having irregular periods, और वो जब periods आते हैं, then are they heavy or is it only spotting? So these two things I need to ask from her. Plus she needs to get her ultrasound done. That's it. And consult the gynec. She's listening and she will personally text you. Is it fine with you? Or absolutely, you can DM me on Instagram. I'll answer your queries. No problem. Okay. One more query is there, Dr. Sana, in the chat box. She is saying like she has full day, like from morning, she has that mental fog in her mind. Very bad symptom of perimenopause. She's very, disturbed related with that. Yes. So can you please guide her? Yes, of course. So this brain fogging, again and again, I'll say, please start magnesium. Please start magnesium and please start vitamin D. Two things will help your brain fog very well. And of course, a little bit of meditation. Okay? Yeah. Magnesium, any specific brand you recommend? Because many are going into those, so Ayurvedic and herbal things. So I'm not sure whether I don't know about Ayurvedic and herbal. If they have magnesium in an appropriate dose, okay. The appropriate dose for now, without any other issues, is 300. If you have 300 milligrams, it's good. Any brand recommendation, doctor, in UAE for magnesium? It is by the name of BioLectra. BioLectra.